evening, everyone. I'm Dr. Mrunmayee Koltharkar, CEO and founder of the Pulmonary Rehab and Caring Conversations as well. Caring Conversation एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमने करीबन 3 साल पहले शुरू किया था. And this is especially for lung patients. सिर्फ lung patients के लिए हमने ये शुरू किया है. It's been a very amazing journey, I would say. काफी सारे अलग अलग speakers आए. Every time we had different topics to discuss, and amazing expert speakers, I would say. This must be our 36th session that we are having now, and it's been a great journey. You would be wondering why have we chosen this topic? So let me give you a backstory about it. बहुत कम लोगों को पता है. Few years back, I would say around 2014, I had been to Kolad, and river rafting was something I was very keen on doing. I don't know swimming, मुझे swimming आता नहीं है, river rafting करना था. And I wore the jacket and I was like, okay, let's go for river rafting. And the boat obviously toppled. I sank. I don't know swimming, मुझे swimming नहीं आता है. And जो jacket मैंने पहना था उसमें कुछ तो issue था, तो the jacket did not work and I was down. It was a very terrible experience that I ever had. Okay, very scary. It is still scary. I still get goosebumps even thinking about it. But तभी मुझे जो breathlessness, जो सांस अटकी, जो महसूस हुआ, that is something stayed with me lifelong. And that is the reason even today's session is about that. Breathlessness does not mean helplessness. I know I was rescued and I'm fit and fine in front of you today, able to deliver a session, able to moderate a session. So that's the story behind today's topic. And also, it's PF Awareness Month, Pulmonary Fibrosis Awareness Month चल रहा है. We are having, this year's theme is Every Breath of the Way. And इस बार हमने quiz रखा है. If some of you are not aware, it's just my way of creating awareness. We are having 30 days, 30 facts, 30 quizzes that we are having. Along with that, it's Blue Up for PF. So if you can see, ma'am also would be dressed in blue. I am also dressed in blue in support of Pulmonary Fibrosis Awareness Month. Now, I would say, as I was telling Mrs. Junjunwala just a minute ago, these are pearls of wisdom that you are going to listen today. She is not only an expert teacher, but also has been my mentor for many years. I had the privilege of studying under her guidance when I was studying in KEM Hospital. So I'm deeply honored to have with us is a legend in our field, I would say, Dr. Jayamala Shetty. She has over 37 years of experience in respiratory physiotherapy, and more than that, this is just KEM, I would say. She has been a mentor, a teacher, and guide to generations of physiotherapists. She is retired as a professor from Physiotherapy School and Center, SAIT GSMC and KEM Hospital. She is also a FAMER Fellow, certified lymphedema therapist, and served on even ethics committee of KEM for 7 years. She's having widely published national as well as international publications, especially for cardiac and lung condition per se. And she's shaped quite a lot of postgraduate and even PhD scholars that she is doing currently also. So beyond all her accolades, she is known for her compassion, I would say her wisdom, and her commitment to help people breathe better. So it's my absolute honor, ma'am, to have you here today. A grand welcome to you and all over to you. Ma'am, I think your video has stopped and you are on mute. Can you please? It's my pleasure, Mrunmayee, to join this group. I'm sure everyone is going to have amazing session, amazing discussion today. And मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आप अगर चैट बॉक्स में डालना चाहे तो चैट बॉक्स में डालिए. We will handle all the queries at end of the session. Don't worry, आपके जो कोई respective concerns है related to the topic, we will handle all the queries.
but at end of the session. So either आप chat box में रखिएगा या फिर at end you can ask, no queries with it. Ma'am, all over to you. Ma'am, your video has, Yes. yes. Thank you, Mrunmayee. I am also very happy, pleased to meet all your friends, and they look quite energetic. Joining today, let's see how we can help them. I'm sharing my PowerPoint, Mrunmayee. Yes, ma'am. So I call them lung warriors. They are Can truly you? lung warriors. Yeah. Yes, ma'am. Your PowerPoint is visible and all over Okay. to you now. It is seen by Yes. all. Perfect. Okay. Now, today's topic is breathless, not helpless. And we are in this month of pulmonary fibrosis awareness month. तो हिंदी में मैंने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की. अस्वस्थ है हम, ब्रेथलेसनेस है, लेकिन हम विवश नहीं है, असहाय नहीं है. तो ये कैसे, ये हमको अभी मालूम करना है. And I thank Mrunmayee for such a beautiful introduction. And because, no wonder, because she is my student also. And actually, students shape the teacher. It has been like that. That all these wonderful students have actually made me a better teacher. So let's start. One example who was suffered from pulmonary fibrosis, international person, Ustad Zakir Hussain ji. You know, everybody knows him, and he suffered from IPF, and still see he was so active. Okay. Now, uh, if we Google the meaning of helplessness, our topic is breathless, not helpless. So let us just see the meaning of helplessness. Helplessness मतलब विवशता का मतलब क्या है कि हम कोई असहाय है, कोई लाचार है, विवश है, बिना दूसरों की सहायता से अपनी देखभाल नहीं कर सकता या अल्प काम करने में भी असमर्थ है. तो ताकत, ऊर्जा और परिस्थिति अनुकूल न होने की वजह से हेल्पलेसनेस आता है. मतलब क्या नहीं, वी आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स, act or care for themselves without assistance from others, and often it is due to lack of strength, lack of power, or control over a situation. So reasons for helplessness are different. Whereas, for example, in COVID, we were helpless. Why? Because the conditions were unfavorable. We had less of workforce, we had low facilities, and डर था. एक डर था बहुत. कर्मचारी कमी थे, सुविधाएं कम थी जितने पेशेंट्स हो रहे थे उससे. और डर बहुत बैठ गया था कि किसको होगा, क्या होगा, अगर होगा तो इसके ऊपर कोई इलाज तो नहीं है, तो हमारा फ्यूचर क्या है. तो दैट इज हेल्पलेसनेस. No, if we are breathless, we need not be helpless. ओके. ये तो पैंडेमिक था, जो कोविड था वो पैंडेमिक था. इसके लिए हम लोग असहाय थे. वी वर हेल्पलेस ड्यूरिंग दैट टाइम. नाउ इफ वी गूगल द मीनिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस, इट इज अ डिस्ट्रेसिंग सेंसेशन of being unable to breathe normally. So breathlessness is related only to the breath, that there is difficulty in breathing, suffocation के जैसे होता है, ऐसे लगता है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ है. So breathlessness and helplessness are not. Now what Dr. Mrunmayee experienced was helplessness apart from breathlessness when she was about to drown. तो कोई बीमारी की वजह से अगर सांस लेने में तकलीफ है तो हम उसको ब्रेथलेसनेस बोलते हैं. So theme of the month month 2025 is कि हम एक एक ब्रेथ लेके वी आर गोइंग टू कॉन्कर अवर ब्रेथलेसनेस. तो सांस पे फोकस है ब्रेथलेसनेस, whereas helplessness is environmental, is others helping us. ओके. तो वो जानने के लिए पहले हमको फाइब्रोसिस क्या है. अब सबको आपको मालूम ही होगा. आई डोंट थिंक दैट यू मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट इट, बट स्टिल मेरी तरफ से एक एजुकेशन के फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है लंग्स में. तो फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जख्म के जैसे होता है लंग्स में, स्कार टिश्यू हो जाता है, एंड देन वी हैव ब्रेथलेसनेस बिकॉज ऑक्सीजन availability becomes less because of that roughened lung texture.
अब हम चाय छा छा क्या बोलते हैं उसको, चाशनी से हम चाय फिल्टर करते हैं। तो अगर चाशनी में पहले से ही अगर ये है, टी लीव्स है, तो फिर जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। वैसे ही बिकॉज ऑफ दीज inflammatory cells which are there, fibrotic cells which are there in the alveoli, ऑक्सीजन आने में, ब्लड में ऑक्सीजन आने में हवा से तकलीफ होती है, एंड दैट इज व्हाई वी एक्सपीरियंस रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। हम एक्सपीरियंस करते हैं कि बाबा ऑक्सीजन कम मिल रहा है, सांस फूल रही है, तो दैट इज फाइब्रोसिस, एंड विच इज नॉट रिवर्सिबल। सो ये देखो, नॉर्मल लंग कैसे काला दिखता है, तो फाइब्रोसिस लंग में कैसे काला है, मतलब हवा है। काला अगर एक्सरे पे दिखता है, इसका मतलब क्या कि अंदर हवा है ना। इधर कैसे है कि ये लंग में, फाइब्रोसिस लंग में हवा कम है, इसके लिए ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो ये अगर बात हमको समझेगी, तो हम रिहैब में जो एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या असर होता है वो समझने में आसानी होती है। तो हमारी प्रॉब्लम लिस्ट क्या रहती है फाइब्रोसिस में? आपको क्या क्या तकलीफें होती है, आप मुझे बताएंगे जल्दी से? सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर और क्या होता है? यू विल हैव टू अनम्यूट, आप अनम्यूट या करके बता सकते हैं। यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी क्या क्या तकलीफ होती है, सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग। यस, ब्रेडलेस, टायर्डनेस, टायर्डनेस, यस, एंड दिमाग सुप्रिया सुन्न है। दिमाग सुन्न हो जाता है, दिमाग ओके, सुन्न हो जाता ओके, दिमाग सुनसा हो जाता है। है। हाँ, और फिर ये सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और क्या होता है? सुप्रिया हैज मैसेज इज चेस्ट पेन। थकान नींद अच्छी आती है? नहीं, नींद लेने में तकलीफ होती बहुत तकलीफ होती है है ना? फिर खाना खाने में तकलीफ होती है, निगलने में, निगलने में। बिकॉज हम ब्रेथलेस हो जाते हैं। तो हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि ड्राई हैकिंग कफ, किसी ने कफ बताया नहीं, खांसी तो आती है, सूखी खांसी आती है, फिर छाती में टाइटनेस लगता है, पैर में स्वेलिंग हो जाता है कभी कभी, फिर भूख नहीं लगती, फिर वजन कम हो जाता है, यू बिकम थिन, एंड इट इज एक्सेसिव वेट लॉस। तो फिर सेंसेशन ऑफ ब्रेथलेसनेस, चलते वक्त, भागते वक्त, हंसते वक्त, रोते वक्त, निगलते वक्त सांस फूलती है कि नहीं? ऑल ऑफ यू एग्री कि ये सब चीजें करने में तकलीफ होती है। मे बी व्हेन यू वर मोर affected you must have experienced it, not that everyone is going to experience it, सबको ऐसा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको ज्यादा तकलीफ है उनको बोलते वक्त भी तकलीफ, दम लगता होगा, उनको रोते वक्त भी। कितने लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रो भी नहीं सकती बिकॉज रोते वक्त तकलीफ होती है। फिर थकान महसूस होती है, टायर्डनेस, और औरतों में ज्यादातर स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस होता है। बार बार खांसी आने के बाद ऐसा लगता है कि तो यूरिन निकल गई, ऐसे भी होता है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं निकलती है, 1 or 2 ड्रॉप्स, दैट ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड, एंड दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। पहले आप अगर बताएंगे कि ऐसे होता है, बिकॉज हमारे यहाँ कैसे होता है कि एक उम्र होने के बाद हमारी नानी दादी परदादी कहती है अरे ये तो का सबको होता है, बिकॉज औरतों में इट इज वेरी कॉमन। बट नहीं, ऐसा नहीं है, वी कैन टेक मेजर्स फॉर इट, अनलेस यू स्पीक अप नोबडी इज गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। तो कॉजेस ऑफ पीएफ क्या क्या है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सिगरेट स्मोक जो करते हैं उनको हो सकता है, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से होता है, जैसे कि हम किधर काम करते हैं, एस्बेस्टोस धुआं निकलता है, उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो सकता है, फिर रेडिएशन, फिर कोल माइनर्स में हो जाता है। तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, चूल्हा जलाते हैं, उधर हो सकता है। फिर आपको मालूम ही है कि अभी बहुत बड़ी ड्राइव निकली थी कि कबूतरों को नहीं खाना देने का, तो उनकी वजह से भी फाइब्रोसिस हो जाता है। फिर चेस्ट को रेडिएशन जब कैंसर में देते हैं तभी लंग्स को फाइब्रोसिस हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस में भी होता है। फिर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, मतलब कि फाइब्रोसिस लंग का होता है, अननोन इटियोलॉजी, मतलब मालूम नहीं क्यों होता है लेकिन होता है। तो ऐसी चीजें बहुत सी है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है। और ट्रीटमेंट क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी है, pulmonary rehabilitation which are already done or doing, and lung transplantation अगर बहुत ही अफेक्शन है तो। और ये मेडिसिन है कुछ, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार होता है, फिर
पूरा दिन रहता है तकलीफ की क्या, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हम देखते हैं। आई ट्राई टू रिड्यूस दिस। फ्रीक्वेंसी मतलब Ma'am, it's कितना, okay. 5 बिलियन लोगों को कम से कम है, ऐसा मालूम होता है। तो हमको किस पे ध्यान देना चाहिए? अगर हमको हेल्पलेसनेस का फीलिंग नहीं चाहिए, तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? तो वी नीड टू बी फिट। ओके, हमें तंदुरुस्त होने की बहुत जरूरत है। फिर वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ अवर कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि अपनी परिस्थिति, जो भी कंडीशन है फाइब्रोसिस, तो उस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कैसे काबू पाते हैं। फिर नीड टू रिमूव द फियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डर निकाल देने का, अपने मन से ये चीज के बारे में डर निकाल देने का। और ये कैसे करने का, ये आज हम देखने जा रहे हैं। तो पहले पहले मुझे आप सब लोग बताइए कि डू यू कंसिडर योरसेल्फ फिट अपार्ट फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, अपार्ट फ्रॉम पल्मोनरी फाइब्रोसिस? आर यू फिट? यस। Everybody feels they are fit. Very good. Anybody feels कि they are not fit apart from आप breathlessness? अनम्यूट करके बोल सकते हैं. You will have to unmute yourself. I Unmute feel करके myself बोलिए. very fit. Very good. Who is it? Dr. Is it Anju Junjun? Jhunjhunwala. हाँ. Me too. Good. And yes. नो, तो मैं नहीं हूँ। मुझे सीओपीडी से पहले भी सीवियर ओस्टियोपोरोसिस है, तो उसके चलते लॉट्स ऑफ पेन, होल बॉडी, नी, बैक पेन। और किसी को तो कुछ है तकलीफ अपार्ट फ्रॉम ब्रेथलेसनेस? I I have have a rheumatoid lot of- arthritis. मुझे पार्किंसंस है। किंसन्स है, नी पेन है, या फिर क्या है? मेरे पा- को पेन है, नेक पेन है। मेरे नहीं, को पार्किंसंस ये दिमाग का थोड़ा सूख जाता है, डोपा है ना। ओके, पार्किंसन है। ओके, पार्किंसंस है तो बॉडी मतलब क्या होता है, काम ट्रेमर्स नहीं तो आते हैं, ट्रेमर्स। काम नहीं करती। ओके, हाँ। Yes, तो Mrs. Desai. आप भी कुछ कह रहे हैं? एकदम दादी ना, मेरे yes, लेफ्ट लेग तो में आप बता जो दो। विच ऑर्गन्स कंट्रीब्यूट टू फिजिकल फिटनेस? देखो कौन स्टमक से अवयव? प्रॉब्लम बहुत होता है, हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होता है। यस, ओके। तो अब हम सोचेंगे कि विच ऑर्गन्स कंट्रीब्यूट टू फिजिकल फिटनेस। कौन से अवयव है कि जो हमको फिटनेस देने में योगदान देते हैं? कौन से अवयव है आपको मालूम है? When you say I am fit, it means that all the organs are fit. If you have some problems can, if you want to become fit, which organs need to be fit? Okay, can you tell me? Brain needs to be fit, bones need to be fit, Your gut, muscles need to be fit, heart, kidneys, brain, gut, that is stomach, muscles and bones. So ये सब organs हमारे पास है, और इनमें से एक है लंग। लंग हमारा बीमार है, लेकिन बाकी के सब जो हमारे अवयव हैं उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं क्या? हम उनकी देखभाल करते हैं। अगर इनको हम मजबूत रखेंगे तो शायद हमारा ब्रेथलेसनेस भी कम हो जाएगा। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज ऑर्गन्स, एंड हमारे पास टाइम बहुत है, तो ये सब हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब आप में से सब लोगों ने रिहैब कंप्लीट किया होगा, then some must be happy. Are you happy with the results? How many of you are happy with the results of pulmonary rehab? ये जो एक्सरसाइज आपने मैडम के साथ किए हैं, Ma'am, so मृण्मयी मैडम के just one rectification. Not everyone is enrolled for pulmonary rehab with me. सारे Okay. पेशेंट्स हैं वो हमारे साथ पल्मोनरी रिहैब के लिए नहीं है. कुछ हमारे पल्मोनरी रिहैब में इट्स अ ओपन सपोर्ट ग्रुप फॉर एवरीवन. ओके, हाँ, लेकिन किसी के साथ तो किया होगा पल्मोनरी रिहैब, आपके साथ नहीं तो किसी के साथ। अगर नहीं किया है तो हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन जिन्होंने किया है, आर दे हैप्पी विद द रिहैब रिजल्ट्स? Those who have joined PR, done PR or Yes. doing PR, Very happy. very happy. Okay. And are you still continuing with the instructions at home? आप Yes. घर पे अभी भी जो बताया है वो करते हैं कि नहीं? Yes. जी हाँ, करते हैं। Quite often. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड रिहैब फॉलो अप करते हैं अभी भी? Yes. बीच हाँ। बीच में कभी फोन करना डॉक्टर को कि हाँ। अपने मृण्मयी मैडम को फोन करके, नहीं तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट को फोन करके कि मैडम ये चीज है, ये मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, ये सब फॉलो अप करते हैं आप? साल जी में हाँ। एक बार,
6 महीने में एक बार। वेरी गुड। तो मतलब आपको मालूम है कि रिहैब में क्या होता है, और जिनको मालूम नहीं है उनको समझेगा अभी। तो आपको लगता है कि आपको जीवन भर व्यायाम करना चाहिए? जो भी जिन्होंने भी सीखा है एक्सरसाइज पल्मोनरी रिहैब का, क्या आपको लगता है कि आपको करना चाहिए उम्र भर Yes, व्यायाम? yes. कि अभी किया है बस हो गया, अभी मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, नहीं, नॉर्मल हूँ? अब झुनझुन वाले मैडम ने बोला कि मैं फिट हूँ, बट शी मस्ट बी डूइंग एक्सरसाइजेस स्टिल, yes, yes, इजंट इट? या तो हमको वो चालू रखना पड़ता है कि एक बार Yes. इतिहास हो गया इसका मतलब फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं। वी हैव टू लर्न फ्रॉम अवर हिस्ट्री, बट वी हैव टू कंटिन्यू द प्रेजेंट। ओके, करना है एक्सरसाइज, उम्र भर करना है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि फिट है कि नहीं, तो कैसे समझेगा हम फिट है कि नहीं? तो ये एक सिंपल मेथड है कि आप दिन भर में कितने चलते हैं, कितने स्टेप्स लेते हैं। स्टेप्स मतलब बेड से उठ के बाथरूम जाते हैं, वो भी स्टेप्स इसमें काउंट होता है। तो आजकल कैसे स्मार्ट वॉचेस आए हैं जिनमें आप कितने दिन दिन भर में कितने स्टेप्स लिए, घर में घर के बाहर सब मिला के दिन भर अगर आप पहनेंगे, और मोबाइल में भी समझता है, तो आपको समझेगा कि आप दिन भर में कितने स्टेप्स लेते हैं। अगर आप 5,000 से कम स्टेप्स लेते हैं दिन भर में, ओके, तो आप सीडेंटरी है। सीडेंटरी है मतलब कुछ भी एक्सरसाइज नहीं और कुछ भी फिटनेस नहीं। तो ये डेंजर रेड सिग्नल है कि आप 5,000 से कम स्टेप्स लेते हैं। इस ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही साथ 5,000 स्टेप्स लेने हैं। दिन भर में 24 घंटे हमारे पास, 12 घंटे है बोलो, 8 घंटे है बोलो, तो ये 8 घंटों में 5,000 स्टेप्स होने ही चाहिए। मतलब 5,000 से ज्यादा। अगर 5,000 से 7,000, 7,500 तक है, तो आपकी फिजिकल कैपेसिटी लो है। मतलब 7,500 तक भी नहीं। आपका अगर ब्रेथलेसनेस है तो 7-8 हजार तक के स्टेप्स तो आपको करने ही है। अगर इतना रहेंगे तो हम बोलेंगे कि हम फिट है। अगर कम है तो धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। ओके, सो इट मे बी विथ ऑक्सीजन, इट मे बी विदाउट ऑक्सीजन, बट दिन भर में अगर आप इतने स्टेप्स लेंगे तो हार्ट के तरफ से आपको छुट्टी है। अगर मॉडरेटली फिट है, इसका मतलब क्या है कि 9,900 से 99, मतलब 9,999 स्टेप्स तक आप चल सकते हैं, दिन भर में स्टेप्स लेते हैं। और बाकी तो बहुत हैवी एक्सरसाइज के लिए है, सो वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट। एटलीस्ट इसका मतलब क्या है कि 8,000 तक का तो आपका स्टेप का काउंट टारगेट होना चाहिए। 7 to 8, ओके, इफ नहीं तो एटलीस्ट 6 to 8 thousand पर डे। और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है विथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो दूसरी बात एक है कि अगर हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है, इफ वी वांट टू इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि जीवन का स्तर, हमारा जो क्वालिटी है रहने का, जीवन का, वो हम इंप्रूव कैसे करेंगे? वैसे तो हम कैसे भी रह सकते हैं, बट वी ऑलवेज लाइक टू अपग्रेड अवर सेल्स। वी लाइक कि हमारा जीवन अच्छा हो, मैं खुश रहूं, मैं सबको मदद कर सकूं, मैं खुद को मदद कर सकूं, तो दैट इम्प्रूव्स अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? तो ये सब चीजें हैं जो हम देखेंगे अभी कैसे करना है। नॉलेज अबाउट द डिसीज विच वी हैव ऑलरेडी टेकन, कि बाबा मुझे जानकारी चाहिए, मुझे क्या हुआ है। कितने लोगों को मालूम नहीं रहता है कि मुझे क्या हुआ है, और फिर अगर ये मालूम नहीं है तो हम कैसे उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं? तो अगर हमको सब डिटेल्स में मालूम है, आजकल गूगल पे भी समझता है, बट फिर भी उसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है डॉक्टर के साथ कि बाबा मुझे क्या हुआ है, कितना हुआ है, कितने इंटेंसिटी से हुआ है, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो ये सब पूछना बहुत जरूरी है। फिर रेगुलर मेडिकेशन, वो तो आप लेते ही हैं, क्योंकि मेडिकेशन की वजह से फाइब्रोसिस होना थोड़ा कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्रेस तो रोक सकते हैं, को थोड़ा स्लो कर सकते हैं प्रोग्रेशन को। तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर अस। फिर डाइट, हम डाइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे बाद में कि क्या करना चाहिए। फिर पानी के बारे में भी डिटेल में जाएंगे। फिर स्लीप पोस्चर्स, कि कैसे सोना है, पोस्चर कैसे होनी चाहिए सोते वक्त, कितना टाइम सोते हैं, कितना बार दिन में सोते हैं, और हमारी क्वालिटी क्या है स्लीप की, कि हम बार बार उठते हैं, फिर दम लगता है इसके लिए उठते हैं, नहीं तो पेशाब होती है इसके लिए उठते हैं।
Do we get up frequently because of urination? Do we have a quiet, nice sleep? How is the quality of our sleep? Posture, what is our posture during sleep? And the duration of the sleep. So these are all important points. Then are we exposed to smoke? हम smoke को exposed है क्या? मतलब चूल्हे का smoke हो सकता है. It may be firewood smoke, or it may be occupational smoke. It may be cigarette smoke. So these things we have to consider. फिर इनहेलेशंस, जैसे कि हम मच्छर है इसके लिए स्प्रे मारा, तो वो भी हमको स्टिमुलेट कर सकता है. सो व्हेन वी यूज दीज स्प्रेज लाइक deodorants, like your mosquito sprays, they also can stimulate your breathlessness. So we have to be away from them. फिर सनलाइट एक्सपोजर, आर यू एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू सनलाइट? के घर में बैठे बैठे रहते हैं, सनलाइट चाहिए, नहीं तो विटामिन डी कमी की वजह से वीकनेस आता है, मसल पेन रहता है, बोन पेन रहता है. सो हमारा D3 कैल्शियम चेक करके उसको नॉर्मल में हम लाते हैं क्या? तो बोन्स फिट है, तो हम फिट है. तो ये सब अलग अलग ऑर्गन्स को हम ध्यान देते हैं कि नहीं. फिर बेड हाइजीन, सोते वक्त क्या सीन है? Is our bed sheet clean? Do we have mites? Are we doing something for that? Are we doing vacuum cleaning for the mattresses regularly, on a regular basis? Is there any dust in your home? ये सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है. तभी सोने के लिए हम we can say that our bed is ready for a healthy sleep, hygienic sleep. These things are small things, but they add on to give us trouble. Then pollution. Now, when we say that मैं चलने घूमने जाती हूँ, मैं फिर घूम फिर के आती हूँ सुबह, फिर भी मुझे तकलीफ होती है, that may be because you are walking. Nowadays, it's very rare to find a pollution-free area for exercises. So you go on a highway. Highway पे walking tracks है, तो gardens highway पे है. So that is not a good thing, where you're walking in pollution. Because when you're walking, you're taking deep breaths. When you're breathless, you tend to take a deep breath. And when you take deep breath, all the pollution is absorbed in the lung. So that is not a good plan. You can walk on your terrace, or you can walk in your garden where pollution is not there. So avoid highways, or because wearing the mask and walking is also very difficult. You will say that I will wear a mask and walk on the highway, but that also causes a lot of breathlessness. In COVID also we have experienced that when we walk or do exercise with mask, it becomes really difficult. Then oxygen is a drug. It cannot be taken as and when we want. So that also has to be titrated, that has to be regulated by people around you. That is by physiotherapist or doctors will tell you, pulmonologist will tell you, prescribe oxygen for you. So you cannot say that I will take oxygen whenever I want and I will stop whenever I don't want. So that's not so. That care has to be taken. फिर, do you take your dinner early? Because full stomach sleep is bad for anyone. All of us should actually, whether we have problem or not, we have to eat early, before 7 o'clock, before 7:30 or 8 o'clock. We have to be done with our dinner. Then breathing exercises, जैसे सिखाए हैं वैसे करते हैं क्या? Are we doing exercises? That should be taken care of. And then breath control techniques also you must have learned. And then avoid passive or active smoking. Active smoking is when you smoke yourself, and passive smoking is when others smoke in front of you. That is still bad, because when a person smokes, they are smoking filtered cigarettes, whereas passive smoking, you inhale more of carbon monoxide. अबाउट डाइट एंड वाटर, आई सेड वी विल गो. खाना पीने के बारे में हम थोड़ा डिटेल में, कि हम क्या खा रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को पूछ के हमको खाना है कि कौन सी चीजें मुझे खानी चाहिए, जिससे मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी, जिससे शुगर नहीं बढ़ेगा. तो ये सब हमें न्यूट्रिशनिस्ट के पास से मालूम होना चाहिए. फिर कितना खाते हैं, पोर्शन. अगर हम एक ही बैठक में ज्यादा खाएंगे, इफ वी हैव टू मच पोर्शन इन अ सिटिंग, then it presses on the diaphragm and we become breathless. फिर कितनी बार खा रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा पोर्शन खाएंगे तो हमें बार बार खाना चाहिए. जैसे कि हम 2 मील्स लेने के बजाय 4 मील्स दिन भर में डिवाइड करके ले लेंगे अगर, तो क्या होगा कि हमको
डाइजेस्ट होने में आसानी होगी और पेट फूलेगा नहीं, तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स कम हो जाएंगे। फिर आर यू हैप्पी वाइल ईटिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप अगर खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते वक्त हैप्पी है क्या, अगर खाना खा रहे हैं तो खाते वक्त हैप्पी है क्या। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हेन यू कुक फूड और व्हेन अदर्स कुक फॉर यू, दोज पीपल ऑल्सो शुड बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। एडिक्वेट वाटर, पानी भी पीना चाहिए, बिकॉज फाइब्रोसिस में ड्राइनेस होता है, lungs become dry, and so we have to adequately hydrate ourselves, at least 2 liters. अगर हार्ट की बीमारी है, फेलियर है, तो फिर बात अलग है, then you have other medications, but otherwise adequate water is very important, hydration is very important. So it could be water, it could be soup, it could be say for example you're drinking tea or coffee, so all the fluids together, at least 2 liters per day, it should be there, so that your lungs are soft. तो हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना है हमको, कि फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो ये तीन जो वर्ड्स है, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड एक्सर्शन, हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है हफ्ते में 3 बार 4 बार, नहीं तो 5 बार। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, कि शारीरिक गतिविधि, मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। Apart from exercise, throughout the day, if you are physically active, it's good. For example, if you want to go and buy something from the shop, you will walk up to that shop and not go by a scooty or something, so that it becomes fast. Okay, so physical activity करना बहुत जरूरी है apart from exercise, और exertion बिल्कुल नहीं करना है। exertion का मतलब क्या है, exertion is परिश्रम। तो we don't have to exert ourselves, we have to exercise as told in pulmonary rehab sessions, and हमको फिजिकल एक्टिविटी करना दिन भर बहुत जरूरी है, कि एक जगह बैठने का नहीं है। नहीं तो कैसे होगा कि आई डिड एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज किया आधे घंटे के लिए, ओके, और बाद में दिन भर टीवी देखते बैठ गए, उसका कोई फायदा नहीं है। दिन भर में थोड़ी 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 थोड़ी, जैसे जिसकी कैपेसिटी है वैसी हालचाल करना बहुत जरूरी है, तभी हमको हम वी कैन बी हेल्पफुल टू अवरसेल्व्स एंड वी विल नॉट बी हेल्पलेस। तो ये हम अगर चार्ट देखेंगे, पिछली बार भी मैंने दिखाया था कि ये है लो फिजिकल फिटनेस, के जैसे हम बोलते हैं सेडेंटरी लोग हैं, दोज हु डोंट वॉक मोर देन 5000 स्टेप्स इन अ डे, तो ये वो लोग हैं लो फिजिकल फिटनेस वाले। फिर मॉडरेट फिजिकल फिटनेस वाले लोग हैं जो 8000 तक चलते हैं, और हाई फिटनेस वाले लोग हैं वो बहुत ही फिट है। अब आप देखेंगे कि ये डेथ रेट है, 10,000 में कितने लोगों की जान जाती है, किसी की वजह से भी, किसी भी वजह से, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, लंग की बीमारी हो सकती है, किसी भी बीमारी की वजह से अगर लोग मृत्यु दर, ये मृत्यु दर है, डेथ रेट है 10,000 में मेल्स का। तो हम इधर देखते हैं कि अगर मॉडरेटली फिट है और हाई फिट है, तो भी डेथ रेट कंपेरेबल है। इसका मतलब हमको बहुत हेवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हम अगर मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अगर विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन, तो भी वी कैन लिव अ fit life, okay, happy life. So this is very important, that we need not, but we should not be sedentary. हम लोग बैठे बैठे रहना नहीं चाहिए, तो that is bad, because that increases the chances of death. Now this is walk and as exercise, it should be in a pollution free area, not walking in a polluted area. Like you know that Delhi is the maximum polluted city, they say, and this is a garden where people are walking. Again, walking with mask becomes a little difficult, you must be aware, but if you are scared, you can use a mask also, and take care that you don't get breathless. So see that when you exercise in a pollution free area. तो वॉक स्पीड लेस देन 3 किलोमीटर पर आवर, द मोर्टेलिटी इज हाई। इसका मतलब क्या है, कि सिर्फ चलना नहीं है, हमको थोड़ा सा फास्ट चलने की जितनी हो सकती है उतनी आदत डालनी है। फिर जस्ट वॉक इज नॉट इनफ,
कि आप बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, चलने जाती हूँ, नहीं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं। तो ये सब एक्सरसाइज भी हमारे पास टाइम है, उतना टाइम यूज करके हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल्स को बढ़ाना है, क्योंकि मसल्स अगर अच्छे रहेंगे तो मसल्स हम कम ऑक्सीजन में सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर हमारे मसल्स एक्सरसाइज करते हैं तो कम ऑक्सीजन लेते वक्त भी ज्यादा काम कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज सेम रिगार्डलेस ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर आपका वजन ज्यादा है, आपका वजन कम है, तो भी एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एक्सरसाइज इज प्रिवेंटिव। तो हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत सी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन दवा खाने से सिर्फ हम प्रिवेंट कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज एज वी हैव सीन, फॉर बीइंग फिट वी नीड फिटनेस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। अगर हमको स्वस्थ रहना है, अगर हमको हेल्पलेस नहीं होना है, तो हमको हमारे बाकी के ऑर्गन्स पे बहुत ध्यान देना है, और उनके लिए भी कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं पल्मोनरी रिहैब में, लेकिन लेग्स के लिए और गट के लिए, मतलब पेट के लिए, फिर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अब ब्रेन के लिए क्या एक्सरसाइज हो सकता है? When we have such a chronic condition, it is very likely that we may go in depression. हमको ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ मीनिंग ही नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमको ब्रेन को ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपकी कोई भी अगर लीजर टाइम एक्टिविटी होगी, जैसे ड्राइंग कर सकते हैं आप, सिंगिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कैन बी गुड फॉर ब्रेथ ऑल्सो। फिर अगर आपको क्या कोई फ्लूट फ्लूट या कोई विंड इंस्ट्रूमेंट अगर करना बहुत अच्छा लगता है, तो फ्लूट बजा सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन ब्रेथ पे कंट्रोल भी आएगा और ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा मन शांत हो जाए। आपको जो अच्छा लगता है वो, जैसे कि कितने तरीके के ड्राइंग्स है, जिसको आपको आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप लाइंस करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। और पोर्टेबल ऑक्सीजन चेम्बर्स की फायदा उठाना है। एक्चुअली इट इज प्रिवेलेंट फ्रॉम 1960, बट we have started using it so frequently after COVID. So COVID has been actually a boon in disguise, where people have accepted the use of oxygen and portable oxygen chambers, and that is why we can live a happy, energetic life because of oxygen chambers, which can be moved. You can go for shopping, you can go for walking, you can go for swimming also. So ये सब चीजें, leisure, your recreation is very important if you want to improve your quality of life. It's not necessary that we are safe existing. We have to live our life, and whatever we feel is good, we should be able to do, and your physiotherapist will help you in. And there is no age bar for exercise. At the age of 90 also you can start exercising. So 50, 60 is really young old. 60 is young old. 70 ke baad middle old. And then after 80, it is old. So at any age, you are supposed to start exercise and continue with it. You can see here at what age these fit people are exercising. Now, most important for us to know is energy conservation technique. मतलब हम हमारे ऑक्सीजन का, जो भी ऑक्सीजन हमें मिलता है शरीर को, उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करना है कि नए लर्निंग न्यू बिहेवियर स्ट्रेटजीज, मतलब हमारा स्वभाव को, हमारे जो भी हम बिहेव करते हैं, हम रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे कि पहले हमको किसी की मदद लेना बहुत अच्छा नहीं लगता था, कि मैं मदद करूंगी लेकिन मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, दैट इज बैड। ओके, if you are ready to help somebody, you should be ready to accept help, especially when you are not well. So these are behavior strategies, learning behavior strategies. They appear very
small, but they are very important and very difficult to practice. Every time you will feel, अरे तकलीफ नहीं देनी चाहिए, we should not trouble somebody. That's not true. Okay, you have been helping others so much. Now it's your time to take the help. So manage time with proper rest period. अगर आप कुछ काम करते हैं घर में, तो बीच बीच में रेस्ट पीरियड लेना बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से आप ऑक्सीजन आपका बहुत दूर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फटीग आना नहीं चाहिए, टायर्डनेस आना नहीं चाहिए। उसके पहले ही काम बंद करना, फिर थोड़ी रेस्ट लेना, फिर वापस काम करना। तो ये जो पेसिंग ऑफ एक्टिविटीज है, स्लोइंग ऑफ एक्टिविटीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करना, अपर एक्सट्रीमिटी हाथ का काम किया, you worked with your upper extremity for some time, then you feel your hands are paining, then you will sit and do some lower extremity work. ओके, जैसे कि पैर से पोछा मारते हैं वैसे। तो ये सब करना, ये सब हमको सीखना है अभी, कि मैं क्या करूंगी तो मैं ज्यादा देर तक काम कर सकती हूँ, नहीं तो फिर ज्यादा कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल होके मैं ज्यादा काम कैसे निपट लूं। तो अवॉइड अनसपोर्टेड आर्म मूवमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि हम बाल बनाते हैं तो हम हाथ खुला छोड़ देते हैं। अवर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज आर our extremities are suspended, so that causes lot of oxygen, requires lot of oxygen, and that demands work from neck muscles, which are actually helping you to breathe also. सो ये सब हम हाथ रेस्ट करके बाल कर सकते हैं, जैसे कि हाथ को किसी के ऊपर टेक दिया और बाल किया। फिर हमारा जो काम करने का एरिया है, मतलब किचन में अगर हम काम करते हैं, नहीं तो ऑफिस में काम करते हैं, तो जो भी हाथ का काम है वो कंधा और कमर के बीच में चाहिए। अगर आप नीचे झुक के कुछ उठाते हैं तो दम लगेगा, अगर आप ऊपर से उठाते हैं तो भी दम लगेगा। तो आपका जो भी डब्बे है, जो भी काम का आइटम्स है, वो सब हमको पास में रखना है, तैयार रखना है। काम करते वक्त जाके ढूंढो, फिर टेंशन बढ़ता है, इधर गर्म हो रहा है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं कि खाना बनाने के पहले सब प्रिपरेशन करके लेने का और फिर आराम से डालते जाने का। तो ये सब चीजें हैं जो स्ट्रैटेजीज है हमको ऑक्सीजन अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए। स्लो डाउन, स्लो डाउन, यू मे बी टेकिंग मोर टाइम फॉर डूइंग द सेम वर्क। आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिर भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करना बहुत जरूरी है। ये है अर्गोजेनिक हेड्स, मतलब कि काम करते वक्त थोड़ा देर बैठ सकते हैं, घूमने गए तो थोड़े बीच में बैठ सकते हैं। सो दीज कैन बी यूज दोज हु कैन अफोर्ड, दोज हु can like such things, and those who are really greatly affected, so they can. So what I mean to say is that no one should be spared from enjoying. सोना कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अगर सीधा सो जाएंगे तो दम लगता है, बिकॉज हमारे पेट के जो भी इंटेस्टाइन है, पेट का जो भी ऑर्गन्स है, ये सब डायफ्राम के ऊपर गिर जाते हैं और फिर डायफ्राम से सांस लेना जरूर डिफिकल्ट होता है। तो इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर हमको इम्प्रूव करनी है, तो देखो ये इतने, अगर दम लगेगा तो ऐसे कुर्सी पे टेक के खड़े रहने का, तो नेक मसल्स ब्रीदिंग में मदद करते हैं। कोनी अगर टेक के खड़े बैठेंगे तो नेक के मसल्स ब्रीथ करने में मदद करते हैं। हेड को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो नेक मसल्स ब्रीदिंग के लिए मदद करते हैं। अगर ऐसा सोएंगे बहुत सी तकिया लेके और हाथ को भी सपोर्ट है, तो नेक के मसल्स ब्रीदिंग के लिए मदद करते हैं। तो रात भर हम ऐसे सो सकते हैं, फिर ऐसे सो सकते हैं रात भर कि ये ऊपर किया है बेड और फिर तकिया दिया है, तो दिस कैन ईज योर ब्रीदिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग। दिस इज अनदर वे टू स्लीप। सो रात भर आप भले टेबल के पास बैठो, लेकिन आप आराम से ब्रीथ कर सकते हैं और बिना टूटे नींद आती है आपको फिर। तो नहीं तो क्या होता है कि आप हॉरिजॉन्टल सो गए, यू आर स्लीपिंग हॉरिजॉन्टल, यू गेट अप suffocated, so that disturbs your quality of sleep. तो we want to talk about quality of sleep, कि आप आराम से सो सकते हैं कि नहीं, कि बीच बीच में टूटती है नींद। फिर अगर बाथरूम को जाना पड़ता है तो वो भी हमें देखना है कि 10 बजे के बाद हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाते वक्त जितना पानी पीता है, दिन भर आप 2 लीटर पी लो, लेकिन सोने के पहले पानी पी के नहीं सोना है, नहीं तो फिर तुरंत बाथरूम के लिए जाना पड़ता है।
फिर पोजीशन ऑफ स्लीपिंग, जैसे कि आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल नहीं सोना है, एंड टाइम टू स्लीप। डू यू स्लीप इमीडिएटली आफ्टर फूड? तो 10 बजे खाना खाया, 10:30 बजे सो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको 8 बजे के पहले खाना है और फिर 10 बजे सोना है। सो स्लीपिंग अर्ली इज important. Duration between food and sleep is important. Coping, getting control over our problem. बी अवेयर ऑफ डिप्रेशन। क्या आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन आ रहा है? आप डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? मायूसी लगती है, फिर ऐसे लगता है कि किसमें मन नहीं लगता, मुझसे कुछ होगा नहीं ऐसा लगता है, तो तुरंत आपके डॉक्टर को बोल दो, क्योंकि उसके लिए भी दवा लेना जरूरी है, काउंसलिंग लेना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि आपको हिडन डिप्रेशन है और फिर आप दवा लेना भूल जाते हो, दवा लेना अवॉइड करते हो, तो इसकी वजह से बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। सो डिप्रेशन कैन कीप यू फ्रॉम टेकिंग इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस, सीइंग योर डॉक्टर व्हेन यू नीड टू, और परस्यूइंग हेल्दी हैबिट्स। तो फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। ओके, तो आज की दवा मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होने वाला है। जब भी आपको ऐसा लगेगा, तब भी आपको कॉल करना है, तब भी आपको डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को फोन करके बोलना है कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूं। तो दे विल हेल्प यू। तो रीच आउट, सपोर्ट ग्रुप, जैसे कि आज हमारा सपोर्ट ग्रुप है, आज इतने लोग आए हैं, मुझे आई एम सो हैप्पी कि पेशेंट्स आर रेडी टू शेयर। एक्चुअली वी शुड हैव अ time where patients are sharing their experiences, and then we are learning from them, because you are the master of your life. You have done so much adjustment, you have taken so much ideas, developed so much ideas to deal with the situation, that we would also like to know. So actually I will request Dr. Mrunmayee madam, that she should do such a session, where patients are sharing their experiences. Definitely, ma'am. We will keep that in note and we will implement on that as well. No worries. Yes. It's a very And good these groups, suggestion. yes, these groups give everyone the opportunity to talk about real stuff. सब बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं. Everybody is telling you, do this, do that. I have now come to tell you, do this, do that. But who is going to listen to you? I am interested. We are interested in listening to you, because you have those, pearls of wisdom, and we would like to listen to them. So lack of focus हो जाता है अगर डिप्रेशन में है तो। वर्क है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दीज आर अवर चैलेंजेस, एंड दैट इज व्हाई वी कैन गेट डिप्रेस। इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव योर ब्लू डेज, एंड we have to overcome those days by asking for help. So your rehabilitation therapist helps you to find out your focus throughout life, and that is why follow up is very important. आप फोन करो डॉक्टर को, you call your doctor, you visit your doctor, you visit your therapist, and they are going to guide you, how to deal with this depression, which brings you back. And the most important final is mind body connection. If you're happy, you're fit. Okay. So when you're energetic, you feel, and see what happens, that when you are physically tired, okay, and say for example, when you were in you were young, okay, you had a lot of energy and you felt tired after days work, you went off to sleep, you would enter the home and you will tell your mother when you were in college that now don't wake me up, I'm going to sleep, I'm going to take rest. And then suddenly your friend calls up that time and tells you that अरे मुझे मिलना है, I want to talk. And then you will take a bath, you will put up nice dress, and then run away. So where that energy came from? That energy came from your mind. Your mind got energized as soon as you received a wanted call. Okay. And so as your mind helps you to overcome your physical tiredness, your uh, when your mind is tired, like you are in depression, your body helps you to overcome that depression. And that is why physical exercises also direct your mind.
And that is why you have to be in contact with your physiotherapist to, have this interconnected benefit of mind and body connection. Okay. So we need not, uh, life isn't for waiting for the storm to pass. You don't have to wait for the storm to pass, that let the storm pass, then I will enjoy. It's about learning to dance in the rain. So even if it is a storm, we have to dance. Be happy, enjoy life, and thank you very much for listening to me. And I would really like to listen to you actually.